Hello everyone, this is Shweta. So maybe an engineering student who like you, who and all are watching the video, and I also belong to the computer science department. So first day I remember when I joined the college, the dream in my mind was, in my heart was कि कुछ भी हो जाए, एक तो प्लेसमेंट मुझे लेना ही है. एंड सेमेस्टर से पहले मेरे पास एक तो प्लेसमेंट होना ही होना है. तो then what happened? The first year went with the friends, making friends, understanding all the curriculum, everything. Then second year में कोविड आ गया. फिर आता है थर्ड ईयर, द एक्चुअल ईयर, जहाँ पर तुम्हारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट विल एक्चुअली गोना पुट द प्रेशर ऑन यू दैट यू हैव टू गेट एटलीस्ट वन प्लेसमेंट, दीज एंड ऑल अदर कंपनीज आर कमिंग, देन this much time you have. And time, trust me, the first company came to our company just after the sixth semester, like end of the sixth semester or kuch aisa, and we had just 6 months in our hand. And in that 6 months also, for realizing the process, you'll waste you will waste around 2 months 3 months वैसे ही बस, और बच्चे तुम्हारे पास अभी 3 से 4 महीना. सो नाउ यू आर एक्चुअली सीरियस, लाइक देख रहे हो हर तरफ दैट एवरीवन आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, ऑल योर फ्रेंड्स आर डूइंग एप्टीट्यूड, कोई इंटरव्यू ले रहा है, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन कर रहा है. देन यू बी लाइक ओके फाइन, नाउ आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम, एंड इफ आई वोंट गेट देन क्या होगा. और सबसे ज़्यादा होता है कि मैंने इतने पैसे डाले हैं यार इंजीनियरिंग में, और इतने टाइम एफर्ट्स डाले हैं, असाइनमेंट्स किए हैं, क्विजेस दिए हैं, इंटरनल एग्जाम्स दिए हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स दिए हैं, इतने सब कुछ करने के बाद यहाँ पे पहुंची हो. और अब यहाँ पर आके अगर प्लेसमेंट ना हुआ तो दैट लाइक समथिंग हिट्स योर हार्ट. नो, आई नो, बट डोंट वरी, आई गॉट योर बैक. I have these 3 methods which is going to help you a lot. And these 3 things, I analyzed it, the strategy I understood, and these 3 things I have used for my placement. And these are the 3 things which are going to help you in your placement also. Just follow these 3 things and you will get to know that how much you are improving and how much confident you are when your company is coming to your college. एंड जब तुम इंटरव्यू में भी बैठोगे ना, तभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा कि एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस व्हाट दे आर आस्किंग, एंड यू कैन कम्युनिकेट विद देम, एंड दैट इज द मेन थिंग इन योर इंटरव्यू राउंड. तो अभी यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, और एक लाइक भी दे दो वीडियो को, और इंस्टाग्राम पेज में फॉलो भी कर लो. अब इतना तो कर ही सकते हो ना. दिस विल हेल्प मी टू ग्रो अ लॉट. एंड if you're new in this channel, so welcome to this channel, and be the member of this channel by subscribing it, and take a moment to check out my other videos also. So let's get started into the video. So now you see the blank page on my laptop. So now I'm going to tell you what and all those 3 things are which will help you for your placement. So when it comes to 3 things, the first thing you have to do, analyze the company and all. So first thing is analysis. So how you're going to do the analysis? So when it comes to the analyzing the thing, you have to analyze about the company. What and all other companies are coming, when they are coming, and how their process are going to be that. Then the second thing is your project. And trust me when I tell the project is going to play the major role in your placement. So basically how projects helps. So through the project, they are going to understand your technical level, like what and all languages you know, what and all technologies you have worked. Because क्योंकि तुम freshers हो, तो freshers को judge करने के लिए ना, they need the like the technical background कि कितना कुछ उनको पता है, and they'll get to know that through the project. Even the experienced people also, they showcase their projects, what they have worked on in the company. Then the third thing comes resources. How the resources is going to help you. So for going to the second round, for interview round, then HR हो गया वगैरह वगैरह, you have to clear the first round first, right? तो aptitude के लिए तुम मतलब you have to search for the guide कि कौन अच्छे से समझा सकता है, but for all those things you don't have time now. So I'll give you the resources which will be helping you for your placement. Then next, let's come to the analysis part. How the analysis is going to help you. So when it comes to analysis, I told you, like you have to analyze about the companies. So the first company you are going to analyze is the partnership with your college. The company which are partner with your college, how they are going to help you. So you must have seen in your college that there are some labs, like IBM lab हो गया, SAP lab हो गया, Capgemini का lab हो गया. So they are partner with your company. So they have the collaboration, like we will spend this much amount in your college for building a lab, या फिर कोई कोर्स देने के लिए, या फिर कोई टूर के लिए. एंड इनके बदले में उन्हें क्या चाहिए ना, उनको they need some good amount of students for their company. So during the placement, these companies, especially from your college, they are going to take in a bulk amount of student, like 30 से ऊपर तो लेंगे ही लेंगे, these people are.
So you have to see that कौन सी labs है तुम्हारे college में actually, and which and all are the courses your teachers are forcing you to do, the company related. Like in most colleges, I have seen the teachers forces the students to do the IBM courses, then Capgemini के courses, then labs मैंने देखे हैं कि SAP lab होते हैं, IBM lab होते हैं, Capgemini के lab होते हैं, Infosys के lab होते हैं. तो try to get into those companies because try to prepare for those companies because ये लोग लेने वाले हैं ज़्यादा अमाउंट में द स्टूडेंट्स. देन कम्स टू द सर्विस बेस्ड कंपनीज. सो सर्विस बेस्ड कंपनीज तो तुम्हें पता ही होंगे, लाइक रील्स वगैरह तो देखा ही होगा. व्हेन यू सर्च फॉर द प्लेसमेंट दे कीप ऑन अपडेटिंग योर सोशल मीडिया पेजेस एंड एवरीथिंग. तो इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, देन कॉग्निजेंट. दीज आर द कंपनीज विच टेक स्टूडेंट्स इन अ बल्क अमाउंट and their rounds are also quite easy. कि इन लोगों के मतलब कोडिंग राउंड होते हैं, but the coding questions they ask like repeatedly the same kind of questions what they have asked in a previous years. And the main thing is it is easy to get their questions on internet. If you search like the company name, the service based company name and the question paper, the previous question paper, like हो गया कि IBM का पता नहीं होगा या नहीं, चलो TCS previous question paper इसे सर्च किया तुमने, then you will get so many question papers. There are so many sites which provide the question papers. Even there are some official sites which are meant to provide the previous question paper of these companies. Then third में आता है तुम्हारे dream companies और product based companies. So when it comes to your dream company, so you must have seen that these are the companies I want to join. Like मैंने engineering किया तो मुझे इस कंपनी में जाना ही है. But एक बात बोलूँ, first thing first, एक ऑफर अपने हाथ में रखो बिकॉज द ड्रीम कंपनीज यूज टू कम एंड ऑफ द सेमेस्टर. मतलब कुछ सेवन सेम के एंड में या फिर 8th सेमेस्टर में ऐसे कंपनियां आती हैं. सो कीप ट्राई टू टेक द प्लेसमेंट ऑफर ऑफ वन ऑफ दिस कंपनी, लाइक पार्टनरशिप वाले कंपनी हो गया या फिर सर्विस बेस्ड वाले कंपनी हो गया. इनके एक ऑफर तो तुम अपने हाथ में रख लो. देन गो चेस फॉर योर ड्रीम कंपनी. और जनरली ड्रीम कंपनीज होती कौन से हैं? अमेजन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया और डेलॉयट हो गया. ये सारी कंपनियां मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ड्रीम कंपनियां होती है. और हम क्या बोले, अभी तो ड्रीम कंपनी तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, अभी तुम्हारी IBM भी ड्रीम कंपनी हो सकती है. तो सी कि तुम्हारी ड्रीम कंपनी कब आती है एंड व्हेन यू हैव टू how you have to prepare, when you have to prepare for that company, for the specific company, and based on that do your preparation. Then comes to the product based company. तो product based company आती कब है? Initially तुम्हारा जब 6th sem या फिर 7th sem के बीच में एक रहता है after the 6th semester end exam, एक गैप रहता है 1 to 2 months का. In those 1 to 2 months all these product based companies are going to come. देन द सेकेंड थिंग इज प्रोजेक्ट. जब प्रोजेक्ट आता है ना तो मतलब कौन से प्रोजेक्ट तुम्हें करने चाहिए. देयर आर 3 प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द 3 प्रोजेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट या फिर ऐसा कुछ, कि तुम्हें लैंग्वेजेस कौन से यूज करने हैं उन प्रोजेक्ट्स में. सो पहला आता है DSA प्रोजेक्ट. सो DSA होता क्या है ना, डेटा स्ट्रक्चर. बीइंग एन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोई ब्रांच के स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे लाइफ में. इन एवरी स्टेज ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू सी द 2 थिंग्स, द डेटा स्ट्रक्चर एंड द बैक एंड. यू हैव टू वर्क ऑन दोज. सो अगर तुम्हारे पास डेटा स्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स नहीं है, सो ऑन व्हाट बेसिस दे आर गोइंग टू जज यू. सो उनको मतलब कोई तो क्लैरिटी चाहिए ना कि स्टूडेंट के पास ये नॉलेजेस है. तो अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाया है, सो दे विल गेट द आइडिया that you know about the data structure, you know what and all things are there, and explain your project related to the data structure project what you have done. Then comes to web app या फिर website वाले project. So web app और website वाले project क्यों करने हैं तुम्हें? Basically the companies work on the project which connects to the world, right? या फिर which connects to the different portal हो गया या फिर कुछ हो गया ऐसे. मतलब देखो तुम अभी कुछ सर्च कर रहे हो गूगल में and you see so many advertisements about the Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Myntra हो गया, इन सब के. तो they need like the connectivity, right? तो वो वेबसाइट तुम्हें अगर बनाना नहीं आता है, so how they are going to take you? So they need the clarity that कि तुम्हें पता है कि वेब ऐप क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, लैंग्वेजेस उनमें क्या यूज होते हैं. सो मोस्टली स्टूडेंट्स यूज द लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब फ्रंट एंड के लिए. बैक एंड के लिए PHP यूज करते हैं या फिर MySQL यूज करते हैं. सो इफ यू वांट टू गो लिटिल बिट एडवांस लेवल, तो मैं बोलूँगी ASP.NET ले लो, देन C#, देन MS SQL सर्वर. इनमें प्रोजेक्ट्स बनाओ दैट यू विल गेट हाई like the chance or high priority than the other students to get the placement. These 3 languages like the ASP.NET, C# और MS SQL Server, these 3 connectivity वगैरह करके एक project बना लो.
Then comes to the third part, your language proficiency project. So when it comes to your placement in the interview, they are going to ask you the first question, tell me about yourself, then the second question, in which language you are good at. So सबका अपना अपना होता है, कोई बोलेगा जावा, कोई बोलेगा पाइथन, कोई बोलेगा सी. सो बेस्ड ऑन दैट यू मेक द प्रोजेक्ट कि तुम्हारे लाइक इन विच लैंग्वेज यू आर प्रोफिशिएंट इन, कौन से लैंग्वेज में तुम अच्छे हो. यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इफ दे आस्क फ्रॉम दैट लैंग्वेज. सो रिलेटेड टू दैट यू मेक वन प्रोजेक्ट. अगर जावा के प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो यूज द ओप्स कॉन्सेप्ट इन दैट. अगर सी के प्रोजेक्ट बना रहे हो, यूज द डेटा स्ट्रक्चर. सो ये तुम्हारे दोनों में हो गया, डीएसए में हो गया, तुम्हारा सी भी आ गया, डेटा स्ट्रक्चर भी आ गया. अगर जावा के बना रहे हो तो ऊप्स बनाओ, और अगर पाइथन के बना रहे हो थोड़ा बहुत एआई का मतलब लाइक पैंडास वगैरह यूज करके, एमएल लाइब्रेरी फाइल्स यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाओ, या फिर तुम टीके इंटर का यूज करके फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्टिविटी करके एक प्रोजेक्ट बनाओ. दैट विल हेल्प यू. नेक्स्ट मूव टू द रिसोर्सेज. सो यहीं पर भी मैंने 3 चीजें दिए हैं रिसोर्सेज के लिए. तो फर्स्ट थिंग योर एप्टीट्यूड. तो यू हैव टू क्लियर द फर्स्ट राउंड, राइट. तो तुम्हें जब फर्स्ट राउंड क्लियर करना है, विच इज योर एप्टीट्यूड राउंड, तो तुम्हें क्या क्या चाहिए उसके लिए. फर्स्ट यू नीड द बुक, and the book I will provide you. I have added the book link in your description. Go click on that link and download the book. And that only book I have used. And do one thing from that book, that in the first page they have mentioned all the formulas for the specific topic. मतलब percentage के लिए दे दिया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूलेस दे दिया, उनको लिख के रखो कहीं पर भी. ओके क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पे तुमने जब लिखा है ना कहीं पर भी, तो तुम्हें वो याद रहेगा कि मैंने कहीं पे लिखा था. तो यू रिफर दोस, एंड व्हेन यू रीड योर ओन हैंड राइटिंग, एंड दैट लाइक हेल्प्स यू टू रिमाइंड इट मोर, रिमेंबर द थिंग्स मोर ईजिली. तो चलो वो हो गया, बुक हो गया. देन द यूट्यूब. हाँ, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर वो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के हो गए, बुक्स के क्वेश्चन हो गए, मतलब कोई रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे, एंड वो सारे चैनल के नेम मैं इस मतलब एंड में प्रोवाइड करूंगी तुम लोगों को. यू सी दोज एंड सर्च करके फिर सब्सक्राइब कर लो उन चैनल्स को, उन चैनल से ही प्रिपरेशन करना, और बहुत अच्छा रहता है उनका चैनल. देन कंपनी क्वेश्चन पेपर्स. I'll try to provide the question papers which I have collected, but मेरा प्लेसमेंट कभी मतलब हो गए हैं ऑलमोस्ट लाइक 6 months या फिर ऐसे कुछ प्लेसमेंट होते होते, तो अभी भी नए नए क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ हो गए इंटरनेट में. 2023 बैच के लिए 2023 बैच के, फिर तुम्हारे 2024 बैच वाले अभी अगर देख रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पेपर्स देते हैं कोई साइट्स, तो वो चेकआउट करना गूगल में सर्च करके. एंड द क्वेश्चन पेपर्स आई विल प्रोवाइड यू. देन कोडिंग राउंड. तो कोडिंग राउंड आई हैव सीन द लाइक मेनी स्टूडेंट्स हैव द फियर, बिकॉज क्योंकि मुझे भी बहुत डर था इस कोडिंग राउंड से, क्योंकि थिंग इज द टाइप ऑफ कोडिंग्स वी डू इन आवर लैब्स is totally different than the type of coding questions they ask in the company placement round. तो इसके लिए मुझे बहुत ही डर था. But the things I followed, every day I started doing one question. तो जब 2 months कुछ थे मेरे प्लेसमेंट के, 6 सेम के एंड एग्जाम के बाद से लेकर मेरे प्लेसमेंट डे तक, मैंने लीड कोड में बस एक क्वेश्चन 10 डेज के लिए किया था. देन आफ्टर द 10 डेज या फिर कुछ 10-12 दिन के बाद आई स्टार्टेड डूइंग 2 क्वेश्चंस, क्योंकि तब तक मुझे आइडिया आ गया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना कैसे होता है, उसको अप्रोच करना कैसे होता है. तो जब 10 दिन मैंने क्या किया था, व्हेन आई सी द क्वेश्चंस आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उस द फंक्शंस दे गिव यू ना, इनसाइड द फंक्शंस यू हैव टू राइट योर द सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए जो सॉल्विंग अप्रोच है उसी फंक्शन के अंदर तुम्हें लिखना है. तो फॉर दैट यू नीड टू नो कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है. मुझे वो पता नहीं था, क्योंकि मैं आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट द क्वेश्चंस लाइक लैब क्वेश्चंस दे दिए, एक लाइन में क्वेश्चंस तुम अपने ही अप्रोच में लिख लो. बट इन दिस देयर आर थिंग्स लाइक यू हैव टू पास ऑल द टेस्ट केसेस. देन हो गए तुम्हारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब कुछ भी ध्यान रखना पड़ता है. तो इसीलिए एटलीस्ट एक कोड या फिर 2 कोडिंग क्वेश्चंस एवरी डे यू डू ऑन लीड कोड हो गया या फिर हैकररैंक, कुछ भी. दोनों साइड्स बहुत सही है, कहीं पर भी तुम्हारा मन जहाँ पे वहाँ पे करो. तो लैब क्वेश्चंस क्यों मैंने यहाँ पे लिखे हैं. तो आई नो देयर आर सम स्टूडेंट्स जो कि लैब क्वेश्चंस ना बस एवरी या फिर कोई कॉलेजेस है जहाँ पे लैब क्वेश्चंस को ध्यान ही नहीं देते. तो क्या होता है ना, तुम्हारा फंडामेंटल जो होता है बहुत मतलब वीक हो जाता है. सो व्हाट यू डू, गो थ्रू द लैब क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ and give different like time complexity approaches. In different approaches you try to solve and see कि कितने टाइम में तुम्हें आउटपुट मिल रहा है. तो उसी से तुम्हें क्या हेल्प होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. तो ये हो गया हमारा कोडिंग वाला. देन एंड में आता है तुम्हारा इंटरव्यू राउंड.
तो इंटरव्यू राउंड के लिए देयर आर इंस्टाग्राम पेजेस जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको जाके फॉलो कर लो, उनके पास बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है। तो हो गया इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम और ग्लासडोर दोनों सेम टाइप के वर्क करते हैं, पर मैं बोलती हूँ इंस्टाग्राम और ग्लासडोर में डिफरेंस क्या है। तो मैं इंस्टाग्राम में इन जनरल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके। मतलब एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे। बट ग्लासडोर हेल्प क्या करता है, तुमने पहला राउंड क्लियर कर लिया एप्टीट्यूड का, कल तुम्हारा इंटरव्यू है कोई एक स्पेसिफिक कंपनी, चलो तुमने आईबीएम का पहला राउंड क्लियर कर लिया, कल तुम्हारा आईबीएम का इंटरव्यू है, तो जाओ गूगल में सर्च करो आईबीएम ग्लासडोर इंटरव्यू क्वेश्चंस, तुम्हें मिल जाएंगे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आईबीएम वालों में पूछा हुआ है पहले। तो बेसिकली दिस इज द साइट, लाइक जैसे तुम्हारे डिस्कॉर्ड में या फिर टेलीग्राम चैनल में सारे डिस्कस करते हैं ना, ये हुआ इंटरव्यू में, ये क्वेश्चंस आए मुझे। So just like that, Glassdoor is the platform only for the professional people who give their feedback over there. And on that, I have seen like they give the actual questions they got, they have asked like in the interview. So वो जाके चेक कर लो Glassdoor. Then क्या होता है, मतलब चीट शीट। तो चीट शीट कैसे हेल्प करने वाला है, तो तुमने इंस्टाग्राम से क्वेश्चंस देख लिए, ग्लासडोर से भी देख लिए, अब चीट शीट तुम्हारे हाथ में है कि क्या बनाना है चीट शीट। सो थिंक कि कौन से मतलब चीज़ें यू हैव टू रिमेंबर। तो जावा, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ जावा। जब जावा आता है तो तुम्हें याद रखना पड़ता है कि सारे ऊप्स कॉन्सेप्ट वाले, राइट। तो उसमें चीट शीट बना लो एक, मतलब क्या एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में एक एक लाइन डेफिनेशन बस बना लो। और इंटरव्यू में कभी भी बुकिश डेफिनेशन मत देना, ओके। वहां पे डेफिनेशंस कैसे देने, मतलब तुम्हें जो भी समझ में आया है उसमें से वैसे मतलब देना। अगर तुम मतलब इंटरव्यू पूछ रहा है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो तुमने बस बोल दिया कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, बस इतना ही। तो दे आर गोइंग टू सी ओके फाइन, दिस गाय नोज द इनहेरिटेंस क्या है, मतलब पढ़ा हुआ है कोई सेमेस्टर में इसीलिए पता है इतना, तो दे विल गिव यू द लेस प्रेफरेंस। बट अगर तुम ये बोलोगे कि इनहेरिटेंस मतलब ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, देन इन जावा वी यूज द एक्सटेंस वर्ड्स टू इनहेरिट द बोथ द क्लासेस एंड वी यूज लाइक दिस। सो दे विल सी कि अच्छा इसने एक्चुअली में ये यूज किया है कहीं पर एंड इसीलिए इसे पता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो दैट इज द थिंग। देन नाउ कम्स टू the resources which I have collected already. So these are the YouTube channels, screenshot ले लो इसके, it will help you a lot, and these are the channels which help me, and thanks to all these channels for being my guide during my placement time. एंड इसमें से तो कोई चैनल बहुत अच्छे हैं दैट दे गिव यू A to Z इन्फॉर्मेशन जो कि तुम्हारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी नहीं देते हैं। So thank you for watching this video, and if you like this video till now, give it a like and subscribe to my channel, and आगे भी I will talk about like this videos। और प्रोजेक्ट रिलेटेड अगर तुम्हें कोई ज़्यादा भी गाइडेंस चाहिए, कैसे तुम्हें सर्च करना है, कहाँ से प्रोजेक्ट, यहाँ पर शायद तुम्हें एक आई बटन दिख रहा होगा, देयर आई हैव एडेड माय प्रीवियस वीडियो। तो वहाँ पे जाके यू कैन चेक आउट कि तुम्हें कैसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, एंड आई हैव शोन यू द गाइड लाइक कैसे तुम्हें एक्चुअल प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, वर्कड प्रोजेक्ट गिटहब से जैसे मिलते हैं वैसे लिंक्डइन वगैरह से जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं सब कुछ बोली तो ये बहुत लंबा होने वाला है। तो बाय, थैंक यू।